Welcome to yet another episode. Some journeys are not just about results, they are about resilience, about saying yes to discipline when everything else tempts you to quit. Welcome to yet another episode of Vidig Toppers Talk, a podcast that brings you unfiltered stories of those who dared to dream and achieved their feat. Today, we have with us someone who not only cracked CLAT 2025 but someone who set a benchmark for dedication, hard work, and resilience. Someone who got AIR 141 and going to Nalsar, Hyderabad. We have with us very calm, composed, and right now smiling Unnat Jain. Welcome, Unnat. Thank you for having me, sir. Thank you so much. So, Unnat, before diving into your journey, I want to ask who exactly is Unnat Jain? Unnat Jain is a person who's desperate to not sound desperate. In this podcast, especially. Very well said. So, Unnat, let us start it from the starting of your journey into CLAT. First of all, before going into CLAT, let us talk about law. So, like everyone else is going for engineering, medicines, etc., etc. How do you come up with law? Law as a subject, law as a career. After 10th, I was very clear that I want to take humanities. And I don't want to state the cliche, but it is a cliche for a reason that humanities lowers your option. I knew that I did not want to pursue UPSC or either mass communication, so law was the only option left for me. And after attending Bahul sir's lecture, I was pretty sure and I was 100% convinced that I hit a bullseye. So you're sounding very clear and very crystal clear about taking law as a subject and pursuing law as a career. Very good for you. And I want to ask, just draw me a picture or actually draw us a picture कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया था, where were you, where were your parents जब उन्होंने सुना, how did you break this news to them and what was your reaction and your parents' reaction? On the day of result, I was sleeping like a baby. There were no doubts because the result was to be given on 10th, but rather it came on the 9th of 7th and the early morning or the midnight of 8th. So I was sleeping like a baby. Then I receive a call that results are out. I'm shattered. What is this? What a surprise. Then I open 141. What? I'm refreshing it. Ho nahi sakta hai. Am I still in my sleep? Am I dreaming? And actually I pinched myself and my result was 141 and I was so happy. And after so many years, I finally got parents' validation and a hug from my father. That was one kind of a memory. Sounds really very awesome and like somebody who is very excited to break in the news to the parents and like expecting कि parents कैसे react करेंगे. Sounds very good. So moving on, Unnat, do you remember your first day at Vidig? My first day at Vidigya, ironically, was a celebration day for the people who cleared before my batch. हम सब ढोल पे नाच रहे थे. मेरा पहला दिन था तो I was nervous to whom to interact with, whom to not interact with. Should I ask doubts to toppers? Should I even converse with them? But जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत comforting था. And ऐसा लगा पहले इंस्टेंस से ही कि I am at my second home. Okay, so Vidig, as always, is a place for celebrations, place for happiness. And with happiness, I remember, like when I was teaching you in the classes, taking lectures, I remember you looked very calm, very composed, like very, peacefully doing your syllabus, completing your part of, journey. So, वहाँ पर what was the difference? Like I have seen people, those who were struggling, those who looked tensed and all, and you were very relentless, very like calm and composed. तो क्या आपको इतना पावर देता है या इतना काम कंपोज रखने में क्या है जो आपको हेल्प करता है? सर कोई पावर तो नहीं है बट एक इनेट इंटरेस्ट है, एक इनेट क्यूरियोसिटी है टू नो मोर. एंड
I did not attend classes just with the perspective of clearing CLAT, but to know more, because बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, स्पेशली व्हाई इज दिस लीडर एक्टिंग लाइक दैट, व्हाई इज दैट लीडर एक्टिंग लाइक दैट, और वो आपकी क्लास में या जो भी सब्जेक्ट रेलिवेंट टीचर है उनकी क्लासेस में सॉल्व होता है. तो वो एक इनेट क्यूरियोसिटी थी जिसने मुझे एक एज दिया. मैंने खुद से ट्राई नहीं करा, वो अपने आप होते गया. सो बेसिकली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. मेरा भी यही मानना है कि जब आप क्यूरियस होते हैं एंड द हैबिट of you developing an opinion for everything is something you required in every sort of journey or any sort of journey. तो ये आदत आपकी बहुत अच्छी मुझे लगी. मूविंग ऑन, मुझे ये बताओ कि एज आपने ये वाला ईयर जो है ड्रॉप लिया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ड्रॉप लेने वाले थे या आप डिसीजन ले रहे थे ड्रॉप लेने का, सो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड या बिहाइंड योर माइंड और बिहाइंड सीन्स विद योर पेरेंट्स कि वो कैसा सपोर्ट कर रहे थे, या are they questioning your decision of taking drop? Sir, first of all, जब 2024 क्लैट का रिजल्ट आया था, I was shattered. एक पूरी रात तो मैं बिल्कुल नहीं सोचा उस बारे में, रिजल्ट के बारे में, and I slept. फिर एकदम से एक थॉट आया दिमाग में कि लास्ट के मॉक्स में बिफोर क्लैट 2024 अगर मैं जीके जैसा सब्जेक्ट जो स्टार्ट में मेरा इतना वीक था उसमें अगर मैं रिकवर कर पाया हूँ, आई एम स्कोरिंग वेल, तो अगर मेरे को एक साल और मिल जाए तो आई मे डू वंडर्स और मैं फाइनली एक NLU तक पहुंच जाऊं अगर एक और चांस मिले. एंड व्हेन इट कम्स टू माई पेरेंट्स और माई फैमिली, आई एम लकी टू हैव पीपल हु डोंट बार्ज इन माई वे और टेल मी यू शुड डू दैट और यू शुड डू दिस. व्हेन दे नो कि मेरा एक फर्म बिलीफ है, अगर मैं ये मन से चाहता हूँ तो रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट दे जस्ट ट्रस्ट मी. कर ले, होगा तो भी अच्छा है, नहीं होगा तो भी अच्छा है. वी आर ऑलवेज विथ यू. सो आई एम लकी इन दैट सेंस. वेरी वेल सेड. मतलब to believe in yourself is something you should do on first, and उसके बाद जैसा कि कहा जाता है कि if you fail for the 7 times you should rise up and fight for the 8th time. So very well said. I can really relate to you. मेरा अगला सवाल ये है कि what was the difference जब आप स्कूल के साथ प्रिपेयर कर रहे थे during your first attempt and जब आपको ड्रॉप के साथ प्रिपेयर करने का मौका मिला, तो क्या डिफरेंस रहा दोनों में? सर, स्कूल के साथ में थोड़ा मैं सीरियस कम था क्लैट के लिए, क्योंकि टाइम भी कम था. सीरियसनेस क्लैट के लिए इसलिए बड़ी, जितनी भी बड़ी क्लैट 2024 के टाइम में, बिकॉज ऑफ डेली हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर. उस वजह से कम 2 क्रिटिकल रीजनिंग और जीके की तरफ मैं सीरियस हो गया था, बट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए सीरियस नहीं था. और कहीं ना कहीं टाइम कम मिल रहा था या टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पा रहा था. मेरी तरफ की गलती थी, बिकॉज एक ही रीजन, सीरियसनेस नहीं थी. बट फिर जब वो फेलियर दिखी, वो आंखों के सामने वो मिरर आया, तो कुछ ना कुछ तो करना है, ये थॉट आया दिमाग में. एंड 2025 में वो सीरियसनेस अपने आप ही आई टू प्रूव माई सेल्फ. क्योंकि एक साल, नाउ दैट आई हैव टेकन ड्रॉप, आई सी माई पियर्स नॉट जस्ट फ्रॉम क्लैट बट फ्रॉम अदर डोमेन्स, दे आर एक्सेलिंग एंड मैं इधर वहीं के वहीं स्टक हूँ. तो आई हैड टू डू समथिंग. और वो जो मेंटर्स ने मेरे को बोला, वो स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई with enough seriousness, with enough passion, despite days where I felt gloomy. So that's the way through. Unnat, in your answer I caught 2 words. First one is very important for those who are aspiring right now or preparing for CLAT, newspaper, and the second word I caught was mentor. So take me to explain these 2 words. First of all, what sort of importance newspaper carry in the whole journey across all the subjects, particularly for GK and for critical reasoning as well. And secondly, tell us the importance of mentor in every subject or in every sphere of life. Newspaper, as Sameep sir says, आपकी preparation का backbone है. And he is 100% correct when he says that. क्योंकि newspaper आपको नए insights देता है, not just news, but how people are thinking, और हम कितना lack कर रहे हैं. हम उनके जैसा क्यों नहीं सोच पा रहे, हम उनके जितना ओपिनियटेड क्यों नहीं है. एंड एग्जाम वाइज में यू हैव टू रीड. आपको 3 सेक्शंस पूरे पेपर के रीडिंग इंटेंसिव है, तो वो आदत न्यूज़पेपर आपको हेल्प करता है बिल्ड करने में. एंड जब आप इतने बार एक ही चीज को प्रैक्टिस करते हो, आपको पता चल जाता है कि हाउ टू डू इट एंड वाई टू डू इट. हाउ टू डू इट में कंक्लूजन अच्छे से निकलने आ जाता है, फिर अजम्पशंस समझ आ जाते हैं, बिकॉज यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. ये तो CR और इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से हो गया.
एंड जीके में ऑल्दो न्यूज़पेपर एक एम्पल सोर्स नहीं है जीके पढ़ने के लिए, बट न्यूज़पेपर से अच्छा और कोई सोर्स नहीं आपको, एक तो ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करने में और जीके के लिए कनेक्ट डॉट्स कनेक्ट करने के लिए. अगर जीके में रटना ही है तो उसमें मार्क्स आप ले आओगे 12-13 पर, वहां पे सैचुरेशन हो जाएगा. अगर आप डॉट्स कनेक्ट कर रहे हो, अगर आप एलिमिनेशन यूज कर रहे हो, अगर आप ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हो, तो शायद वो आपको एक एज देगा जहाँ पे आप 15, 16 एंड इवन 17 स्कोर कर पाओ. तो ऐसे न्यूज़पेपर ने हेल्प किया. एंड मेंटर्स, मेरा ये सोचना है कि अगर क्लैट एक नया बच्चा है तो मेंटर्स उसकी माँ है. दे हेल्प यू, दे गाइड यू, दे आर विथ यू एट एवरी स्टेप ऑफ योर प्रोसेस. अगर कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में वैल्यू तो ऐड कर ही रहे हैं वो, पर उनका होना ही एक अश्योरेंस है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि एटलीस्ट समवन इज बिहाइंड मी जो मेरे लिए रिलेंटलेसली वर्क कर रहा है, और अगर मैं उनके साथ में वर्क नहीं कर रहा हूँ तो ये उनके लिए अनफेयर है. आई ओ देम दैट. ओके, वेरी वेल सेड. सो यू वर टॉकिंग अबाउट मार्क्स, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि विदिज्ञ के पहले मॉक में आपका क्या स्कोर रहा है? विदिज्ञ के पहले मॉक में मेरा स्कोर था 26.5. और फिर यहाँ से विदिज्ञ के आखिरी मॉक तक कितना स्कोर जंप किया? आखिरी मॉक में मेरा स्कोर था 90.25. सो एज यू कैन सी कि एक बहुत लंबा आपने लीप फॉरवर्ड किया फॉर मार्क्स. गुड. एंड ऑल्सो कितना डिफरेंस लगा आपको विदिज्ञ के मॉक्स में और क्लैट के पेपर में? डिफरेंस, व्हेन आई टॉक अबाउट डिफरेंस, मतलब क्या ज़्यादा टफ था? विदिज्ञ के मॉक सॉल्व करना ज़्यादा टफ है या क्लैट सॉल्व करना? विदिज्ञ में मॉक देना ज़्यादा डिफिकल्ट था ऑफ कोर्स, क्योंकि क्लैट वाज ऑन सिमिलर लाइंस बट वाज सिंपलर देन विदिज्ञ मॉक्स. क्योंकि जब इतने सारे मेंटर्स 4 साल 5 साल प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके आपके लिए क्लैट एक इन मॉक बनाते हैं और उसमें खुद की एक्सपर्टीज भी इन्वॉल्व करते हैं और एग्जामिनर्स के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चंस बनाते हैं, दैट गिव्स यू एन एज एंड ऑल्सो प्रिपेयर्स यू फॉर द डी डे. Yeah, definitely. If you prepare for staunch bouncers, you will definitely hit on some full tosses. Right? Yeah. So moving on, I would like to know particularly from you, Unnat, कि mindset, क्योंकि मुझे आपको देख के लगता है कि आप काफ़ी फिलोसॉफी या फिलोसोफर टाइप की जो है आइडियोलॉजी रखते हो. तो मेरा आपसे सिंपल सा ये पूछना है कि एक माइंडसेट का होना या एक अप्रोच का अलग होना कैसे किसी को डिफरेंट आउटकास्ट करता है या कैसे किसी को डिफरेंट रखता है या एक एज प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग जर्नी? माइंडसेट, वो भी एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो आपका डाउनफॉल चाहेंगे एंड दे माइट गेट टू यू इफ़ यू हैव अ वीक माइंडसेट. बट एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको रिलेंटलेसली एक जगह पे पुश करने के लिए आपको केटर करता है. क्योंकि when you stop caring about what others would say, stop caring about what your marks would say, and you de-hyphenize your identity with your failures and your own self, you might fail or one day, but that doesn't make you a failure. A strong mindset will always and always cater you and always will help you bounce back even harder and even stronger. सो बाउंस बैक की आपने बात करी, तो आई वुड लाइक टू आस्क कि डेफिनेटली एक एग्ज़ाम की जर्नी होती है. फॉर एग्जांपल क्लैट की जर्नी थी, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि अलोंग द ईयर और ईयर एंड हाफ कभी ऐसे सिचुएशंस आते होंगे कि आपको गिव अप करने का मन करता होगा या डीमोटिवेटेड फील होता होगा. तो आपने वहाँ से कैसे अपने आप को संभाल के रखा, अपने आप को समझा के रखा, एंड फिर वहाँ से कैसे आप बाउंस बैक किए? सबसे बड़ा शॉक तो मेरे लिए 4 मॉक बिफोर ओरिजिनल क्लैट ही था, व्हेन आई स्कोर्ड 60.25. I was scoring not very well, but decent in mocks previous to this mock. This mock and this result was like a shock. I was so shook that I started laughing instantly कि ये क्या हो गया? I did not expect this. And that very moment मेरे को कुछ करने का मूड नहीं था, ना मॉक एनालाइज करने का मूड था, ना पढ़ाई करने का मूड था. And in that moment I got in an influence of my emotions, and I slept through that emotion or that moment. And when I woke up, I saw the calendar कि क्लैट आने वाला है, and now you're into it. There's no way out. Flight or fly, run away का कोई ऑप्शन ही नहीं है. You have to be in there. तो अब ठीक है, कम स्कोर आया, कोई बात नहीं. अगले मॉक में कम से कम 1 मार्क 2 मार्क की अच्छा स्कोर कर दो. That means you're improving. तो I slept through that whole thing, or I might even have watched a movie
to get off that bad emotion and that feeling of not being worthy enough. So I might also suggest you to do the same thing on few days when you feel that things aren't going that well. Take a good nap and then refresh, restart, because that's the way you do it. So Unnat, very well said. Basically इमोशनली इंटेलिजेंट होना या इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है किसी भी जर्नी में. एंड यू मैंशनड अबाउट वॉचिंग मूवीज, टेकिंग अ नैप. सो आई वुड लाइक टू आस्क कि आपकी हॉबीज का होना या आपकी हॉबीज कैसे आपको हेल्प करते हैं टू ईज अप द प्रेशर, टू लिव अप विद दोस प्रेशर्स, एंड फिर आपको कैसे वापस से वो रिफ्रेश करने में मदद करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अ बिग स्पोर्ट्स फैन एंड बाहुल सर भी अपनी क्लैट की प्रिस्क्रिप्शन में आपको ये हाईली प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप स्पोर्ट्स खेलो, भले कम समय के लिए खेलो बट खेलो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल हेल्प योर मेंटल फैकल्टीज and it will help you be very attentive in the moment. Playing sports helps your mind getting off distractions, and उसमें आपका कहीं ना कहीं एक माइंड भी इन्वॉल्व हो रहा है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है. एंड स्पोर्ट्स खेलना, आई डोंट हैव टू रिट्रेट इट अगेन एंड अगेन, एक वंडरफुल और एक बहुत मजेदार प्रोसेस है. एंड सेकेंड हॉबी वो मेरे क्लैट की जर्नी के साथ कल्यूड करता है, वो है बुक रीडिंग का. तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर मी. मेरा एक डिटूर भी हो रहा है, एक डिटॉक्स भी हो रहा है, और मैं साथ साथ में अगर किसी दिन पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा. मैंने कुछ ना कुछ तो पढ़ा है, एक भी दिन वेस्ट नहीं गया है. Yeah, exactly. Books always adds some value to you. Okay, so distractions. When we talk about distractions, like हमने हॉबी की बात करी. Some people are really into scrolling Instagram, Doom scrolling, and Facebooks, and similar kind of stuffs. तो अगर वहाँ पर somebody is too much into social media and all, so I would like to ask कि आप कैसे सोशल मीडिया के प्रेशर से या इसकी लाइमलाइट से कैसे अपने आप को आपने इस टेम्पटेशन से दूर रखा, और हाउ वुड यू सजेस्ट पीपल कि आप कैसे सोशल मीडिया से डील करें. ड्यूरिंग माई फर्स्ट अटेम्प्ट मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, even I was a patient of doom scrolling and going through Instagram again and again and again. I was helpless. But then I had a Sanidhya session with Sameep sir, and he told me straight away, either get rid of social media or Clat will get rid of you. So I had to make a choice, and the choice was very clear, to give up social media. आदत थी social media scroll करना, और वो starting के days में difficult था उसके सोशल मीडिया यूज ना करना. बट देन मेरे को 2-3 हफ्ते बाद ये रियलाइज हुआ कि मेरे लाइफ में जितनी भी इनसिक्योरिटीज थी, जितने भी कंपैरिजंस थे, वो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम ने ही एड करे थे. एंड व्हेन आई गॉट बैक फॉर सेकंड अटेम्प्ट, फ्रॉम द स्टार्ट आई वाज ऑफ सोशल मीडिया, एंड आई एम वेरी प्राउड व्हेन आई से दिस दैट आई वाज ऑफ सोशल मीडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट गिव्स यू मोर टाइम, एंड सेकेंड ऑफ ऑल, वो कंपेरिजंस नहीं है, वो इनसिक्योरिटीज नहीं है. You have only yourself to focus on and nobody else. तो मैं आपको भी कहूँगा कि प्लीज लीव सोशल मीडिया, एंड यूट्यूब भी उतना ही इस्तेमाल करो जितना जरूरी है, जरूरत से ज्यादा नहीं. प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस. एंड एक्चुअली आपने मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर भी किया. लाइक आई वाज अबाउट टू आस्क कि सानिध्य सेशन कैसे हेल्प करते हैं, बी इट विद समीप सर, बी इट विद बाहुल सर एंड एवरीबडी एल्स. तो सानिध्य सेशन डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि दे हेल्प यू टू कीप योरसेल्फ इंटैक्ट इन योर जर्नी. सो मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू आस्क कि जब आप क्लैट की जर्नी में व्हेन यू वर एट विदिग, सो कभी आपको ये सवाल आया दिमाग में कि यार टॉपर्स कैसे दिखते होंगे, टॉपर्स कैसे पढ़ते होंगे, दैट इनसिक्योरिटी सॉर्ट ऑफ सिनेरियो कि क्या मैं, एम आई डूइंग इनफ, क्या मैं टॉपर जैसे पढ़ रहा हूँ, क्या मैं टॉपर जैसे ड्रेस कर रहा हूँ, क्या मैं टॉपर जैसे कोम कर रहा हूँ, क्या मैं टॉपर जैसे हंस रहा हूँ या रिलैक्स हूँ. मतलब बेसिकली एक जनरल स्टूडेंट में जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी होती है, या सेंस ऑफ क्वेश्चनिंग होती है खुद से, जो सेल्फ बिलीव नहीं होता है कि यार टॉपर्स क्या अलग कर रहे होंगे, क्या मैंने अपने टारगेट्स पूरे करे. जब आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए या डाउट्स आए कि क्या मैं टॉपर जैसे काम कर रहा हूँ, तो क्या ऐसे डाउट रियलिस्टिक हैं, क्या ऐसे डाउट्स आते हैं? बिल्कुल ये डाउट्स आते हैं. पहले आई यूज्ड टू लुक एट टॉपर्स एज क्लाइंबर्स ऑफ हिमालय, ये मिसकंसेप्शन था. बट व्हेन आई इंटरैक्टेड विद बाहुल सर, he reiterated this again and again.
टॉपर वो नहीं है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है, टॉपर वो है जो ऑर्डिनरी कंसिस्टेंटली कर रहा है. तो अगर बाहुल सर ने मेरे को कुछ बोल दिया तो वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है. अगर सर ने ये बोला है कि यू आर नॉट डिफरेंट देन टॉपर्स, टॉपर्स और तुम में यही डिफरेंस है कि दे हैव फेस द हीट ऑफ द एग्जाम एंड यू आर टू बी फेसिंग द हीट ऑफ एग्जाम. तो दैट हेल्प मी काम माई नर्व्स एंड मेड मी पुट इन अ माइंडसेट कि बस लगे रहो. टॉपर बनना एक बाय प्रोडक्ट है. आप प्रोसेस एंजॉय करोगे, आप भी उस मकाम तक पहुंचोगे. और पहुंचो या नहीं भी पहुंचो वो जरूरी नहीं है, पर प्रोसेस तो करो कम से कम. हाँ बिल्कुल सही बात है. जस्ट टेल मी कि आपने 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम चूज किया या कौन सा सब्जेक्ट किया, और ये डिसीजन लेने में क्या इनपुट्स थे जो आपने दिमाग में रखे while choosing your stream? Sir, in 10th, I thoroughly enjoyed reading political science, and in 9th, I thoroughly enjoyed the French Revolution, the Russian Revolution, and the chapter on Hitler's Germany. That was these two subjects were the catalyst for me choosing humanities, because humanities के दो major subject ही history और political science है. And बाकी psychology too, I was new to psychology, and luckily I ended up enjoying it more than history and political science, because it gave me the background or the mindset of why people act such a way, or why even people like Napoleon or Hitler, to understand their politics you must know what were their psychology back then. So to understand or to climb that ladder, it's different to know a fact that World War II started in 1939 and ended in 1944, and it's different to know why World War started, why did Hitler intruded Poland, why did he try to make a mass movement against Jews. That's different, and that's where you actually realize how fun these subjects are. That's why I took humanities. एंड टू अगेन रिट्रेट, 10th में और 9th में मुझे अच्छे चैप्टर्स पढ़ने मिले, तो वो एक इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन था कि लेट्स गो विथ ह्यूमैनिटीज, बिकॉज कॉमर्स और साइंस इज नॉट माई कप ऑफ टी. Okay, Unnat, so the way your eyes were sparkling when you mentioned Nazi Germany and all those historical, events and happenings, ऐसा लग रहा है एक अलग पॉडकास्ट हमें इसके लिए रखना पड़ेगा फॉर डिस्कसिंग इंटरनेशनल रिलेशंस वे बैक ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 and 2. Anyways, moving forward, I would like to ask, what was your strategy? If you could please explain me कि overall strategy क्या थी for CLAT, and if you want to classify them based on subjects, कि हर subject के लिए क्या strategy थी आपकी? If we are talking about subjects, then let's go chronologically. First of all, English के लिए reading books is must. Please read books. एंड प्लीज रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली. ये बेयर मिनिमम है. अब इसके बाद जो क्लास शीट्स मिल रही हैं, क्लास शीट सॉल्व कर ली, वेल एंड गुड, बट उसको एनालाइज करा कि नहीं, एनालाइज करा तो और भी अच्छा, बिकॉज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. और अगर नहीं करा है तो फिर वो कभी नहीं होनी है. फिर एक और बेयर मिनिमम ये आता है कि मॉक्स तो हर सब्जेक्ट में इज अ कॉन्स्टेंट. मॉक्स को एनालाइज करना, तो आई विल टेक दिस एज अ बेयर मिनिमम, और ये गिवन ही है. फिर जो आपको मटेरियल दिया जा रहा है यहाँ पे, स्टडी मटेरियल, क्लासरूम मॉड्यूल्स के बाद में अगर टाइम बचता है, जो बचेगा बिल्कुल बचेगा, अगर आप प्रोसेस ढंग से फॉलो कर रहे हो तो मॉड्यूल सॉल्व करो. ये जरूरी नहीं है कि आप होलसेल में आपने बस सॉल्व कर लिया और ऐसे जमा के साइड में रख दिया. आप एक मॉड्यूल उठाओ, उसका हर एक पैसेज ढंग से पढ़ो, जब तक सारे वर्ड समझ ना आए, जब तक आपकी वोकैबुलरी डायरी में उस पैसेज से 5 वर्ड्स या 6 वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर skills ऐड नहीं हो रहे हैं. Don't jump to questions or another passage. That is for English. For GK का पंचतंत्र, what is that term, sir? Actually, पंचामृत. Sorry. Sir, I think आपकी एक्सपर्टीज उसमें ज़्यादा है मेरे से, बट वीकली राउंड अप्स कंसिस्टेंटली उनको रिवाइज करना, एंड द वे टू डू इट शुभ सर विल टेल यू, उस तरीके से करो तो बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. एंड न्यूज़पेपर विल ऑल्सो केटर योर जीके का सेक्शन. वीकली राउंड अप्स पे सबसे ज़्यादा जोर देना और उनके रिविजन पे उससे भी ज़्यादा जोर देना,
जब तक एक वीक के फैक्ट दिमाग में ना चिपके तब तक नेक्स्ट वीक पे जंप मत करना. देन वी कम टू लीगल के लिए सर ब्रेक थ्रू वॉज महा मैराथन सेशंस ऑफ बाहुल सर. द वे ही यूज टू प्ले विथ अस इन द शीट्स. सब बच्चे इन टैंडम यही सोचते थे कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बी ही होगा, एंड सब बच्चों का आंसर गलत होता था. एंड that's what makes बाउल सर डिफरेंट, बिकॉज वो हमारे पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि हम क्या गलत करेंगे. ही इज 2 steps ahead. तो उन्होंने जो हमको प्रिपेयर करा और उसके बाद में जो तरीका बताया, हाउ टू एनालाइज इट, हाउ टू गो थ्रू इट, हाउ टू एक्स्ट्रा रिसर्च अपॉन दैट वेरी पर्टिकुलर पैसेज, दैट विल हेल्प यू. बाहुल सर नॉट जस्ट हेल्प्ड अस विथ लीगल, बट लास्ट के 1 महीने में ऑल्सो हेल्प्ड अस विथ स्पीड रीडिंग. ही वुड चैलेंज पीपल फ्रॉम दी क्लासेस कि कौन 5 पैसेजेस को 25 मिनट में कंप्लीट करेगा. कुछ बच्चे कर पाते थे, और जो बच्चे कर पाते थे आयरॉनिकली उनकी एक्यूरेसी कम ही होती थी जिन बच्चों ने 30 मिनट लिए. तो ये तो एक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखो. दैट वाज द वे बाउल सर डिड इट. एंड बिकॉज एक आपके ऊपर अपर लिमिट दी गई है कि 30 मिनट में ही करना है, पेन्स डाउन, उसके बाद में एक टिक नहीं लगाना है उसके बाद, तो वो एक एडिशनल प्रेशर डाल देता है कि 30 मिनट में ही मैं सारे अटेम्प्ट करूं. एक्यूरेसी उसके बाद वील चेक, बट कम से कम अटेम्प्ट तो करूं. तो बाहुल सर वाज कार्डिनल इन लीगल रीजनिंग. देन व्हेन इट कम्स टू CR टेक्स अ लॉट ऑफ क्लियर बेसिक्स अच्छे क्लियर होने चाहिए. कि एक सबसे पहले तो पुट योर फीट इन ऑथर्स शू, ये तो बेयर मिनिमम है. फिर उसके बाद में व्हाट आर अजम्पशंस, व्हाट इज प्रेमिस, व्हाट इज कंक्लूजन, और इन सब में डिफरेंस क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट, वो जानना बहुत ज़रूरी है. और वो प्रैक्टिस जितना करोगे उतना क्लियर होते जाएगा, क्योंकि एक वन फिट फॉर ऑल सोल्यूशन नहीं है. आपको हर पैसेज में कहीं पे आपको अजम्पशन एकदम नीचे मिल रहा है, एकदम लास्ट पैराग्राफ में मिल रहा है, कहीं पे आपको प्रेमिस ही नहीं मिल रहा है. आपके लिए हर एक नया पैसेज, हर एक नया चैलेंज है. एंड अनटिल एंड अनलेस आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो. एंड द फैकल्टीज एंड द टीचर्स हियर विल हेल्प यू विद द बेसिक्स. वो स्टार्ट ही यहीं से होता है, क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट. एंड मैथ्स में अप्रोक्सीमेशन वाली टेक्निक प्लेड अ ह्यूज रोल फॉर मी, क्योंकि जहाँ पे क्लैट ने इतना एरेनियस पेपर बनाया, उसके बाद भी अगर आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, बट आपके पास एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है, तो यू माइट स्कोर डिसेंट इनफ टू क्लियर क्लैट. और ये हमें उधर क्लैट के दिन पे रियलाइज नहीं हुआ, उसकी प्रैक्टिस बिफोर हैंड 2 महीने 3 महीने पहले से ही करवा रहे हैं टीचर्स एंड बाउल सर, कि अप्रोक्सीमेशन को आप अच्छा करो और कॉन्सेप्ट समझना, उनकी प्रैक्टिस करना, वो बेयर मिनिमम है. मैथ्स प्लीज डू रेगुलरली, बहुत ज़रूरी है. आई वॉज वीक एट मैथ्स, बट माई मैथ स्कोर इन क्लैट वॉज डिसेंट इनफ टू गेट मी थ्रू क्लैट. एंड वो प्रैक्टिस से ही आया, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते ही आपको आपकी गलतियां समझ आएगी. Answers to your doubt lies in your action. Keep acting and every doubt of yours will go away unless and until वो एकदम टेक्निकल डाउट है जो टीचर सॉल्व करेंगे. प्रैक्टिस एवरी डे. कभी नहीं हो रहा है 1-2 दिन तो कट सम स्लैक, चलता है, बट उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस इज ओनली व्हाट विल हेल्प यू ऑन द D-Day. So that was my strategy for every subject. Really glad to know कि you know very well about your subjects and strategies and what all you need to do. Anyways, अगर हम आगे बात करें, so definitely we talked about subjects, we talked about strategies, we talked about mocks, how marks they differed in every mock, or how you kept on improving mock by mock. For last thing, I want to know कि what was the idea behind, can you please explain us कि जो हमारा आइडिया था behind mock diaries, क्या आप तक वो आइडिया पहुंचा, and in how possible ways आपको ये mock diary help करी है improving and tracking yourself improving mock by mock. सर हर मॉक के बाद मैं जब घर जाता था मैं बहुत खुश होता था, क्योंकि मैं स्पेशली सेकेंड अटेम्प्ट में मॉक डायरी स्टार्टिंग मॉक से भरी है. तो जब वो इतना हार्डवर्क दिखता है कि करा है, तो फीलिंग बहुत प्रेशियस और बहुत अच्छी लगती है.
और वो एक साइकोलॉजिकली भी हेल्प करती है कि यार अगर इतने मॉक कर लिए हैं तो एक और मॉक कर लो, आखिर में एट लास्ट डी डे पे यू वोंट हैव एनी रिग्रेट कि मैंने 80 में से एक भी मॉक का एनालिसिस नहीं करा. एंड व्हेन इट कम्स टू MADs, वो एक होलिस्टिक मॉक एनालिसिस के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको आपकी मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है. MADs इज नॉट जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू कीप ट्रैक ऑफ योर स्कोर्स, बट वो जो सेक्शन दिया रहता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का, उसको अच्छे से इस्तेमाल करो. उसमें भली कैसे भी लिखो, बट ऐसा लिखो जो तुम्हें समझ आए. इफ यू हैव फिल्ड इन द बेयर मिनिमम की अटेम्प्ट करा या नहीं क्वेश्चन एंड करेक्ट हुआ, सही हुआ, क्या स्टेम था क्वेश्चन का, वो ठीक है, बट वो सेक्शन को अच्छे से यूटिलाइज करना स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का. वहां पे अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है खुद के ऊपर कि इतना इजी क्वेश्चन उस समय पे एट द हीट ऑफ द मॉक क्यों नहीं हुआ, तो वो भी एक्सप्रेस करो. एंड जब अगला मॉक देने जाओ तो एक बार प्रीवियस मॉक की MAD एक बार देख लो कि वो जो गलतियां करी है वो मैं वापस ना करूं. एंड हर एक रो और टेबल को बहुत माइन्यूटली स्टडी करके बनाया है. एक भी ब्लैंक को फ्री मत जाने दो, हर चीज को भरो. एंड आफ्टर ऑल इट विल बी अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन फॉर यू कि अगर मैं मैथ्स में 2 मॉक से 0 अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो कम से कम इस मॉक में कर लूँ, मेरा एक मार्क ज़्यादा बढ़ जाएगा, 2 मार्क ज़्यादा बढ़ जाएगा. जो इस चक्कर में फंसा हुआ है कि यार मैं 60 टच ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे 55 मार्क्स ही आ रहे हैं, मेरे 56 आ रहे हैं, 59.5 ही आ गए हैं, वो इस चक्कर में घूम रहे. शायद जहाँ पे आपने अपनी एक गलती भी पकड़ ली, अगर एक MAD से आपने एक गलती पकड़ ली, शायद आप वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाओ और यू माइट एंड अप फीलिंग बेटर. एंड फीलिंग बेटर आफ्टर द मॉक विल help you give another mock with a better mindset. Okay. काफ़ी थॉरोली एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू फॉर इट. एंड बेसिकली मॉक डायरी में अगर हम 3 शब्दों में बोलें तो स्टॉप, एनालाइज एंड मूव. सो बहुत ही अच्छे से आपने डिफाइन किया. विद दिस हम लास्ट एक सेगमेंट करना चाहते हैं विच कुड बी अ फन फॉर यू एंड मी एज वेल. Let us move forward for rapid fire, or rather we can say CLAT rapid fire. Yes, sir. So as you know, rapid fire mein you need to be rapid and you should be firing as well, you know. So I know you are a calm and composed personality, but I would expect कि थोड़ा fiery हो आप तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है. And I won't you know put you in spots जहाँ पर आपको difficult हो. मैं बहुत easy CLAT related ही आपसे rapid fires पूछूंगा. So coming up to you rapid fires. So first question. What is difficult? Mocks or modules? Mocks. Favorite subject? GK. Late night or early morning person? Early morning. Next question. Which one is more interesting for you? QT or LR? QT. One word quickly to describe your journey for CLAT. Prasad. Prasad. One superpower you would like to have during CLAT journey? Being unaffected by marks of mock. Very good. So I don't have any hamper for you. But I would like to ask 2 more questions which might put you on spot for being a rapid fire person, and if you want to be a fiery, it might could put you in such place. So Israel or Palestine? I got you. No comments. No comments. Iran or Israel? No comments. So that's how the lawyers are. We have one lawyer breeding us for you, and how diplomatic he is, we got to know. So that's it. Thank you so much, Unnat. It has been a very deep and very sort of intellectual talk with you. I'm very happy I got this opportunity to have a word with you, and thank you and all the best for your journey at Nalsar, and congratulations. Thank you so much, sir. Thank you so much. It means a lot, sir. Thank you.